Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss the topic elements of contract. In previous class and previous part we have already discussed that what are the elements of the contract. As you know that there was a difference of opinion among jurists. Hanafis are of the view that there is only one element of contract and that is sigha. Sigha is also known as ijab wa kabul, mean offer and acceptance. On the other hand, the majority of the jurists were Malikis, Hanbalis, and Shafis. They are of the view that there are three elements of the contract, and according to them, there is offer and acceptance. Number two is subject matter, and number three is parties to contract. यानी मुताकिदैन अक्द करने वाले, ईजाब और कबूल, और वो चीज जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है या अक्द किया जा रहा है, ये तीन चीजें एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनती हैं. So in this discussion we will cover both Hanafis and the majorities, because what the Hanafis says it is also covered in the under the discussion of the debate which is conducted by the majority जमहूर. तो जो कुछ हनफी कहते हैं वो चूंकि जमहूर भी कहते हैं कि ईजाब और कबूल भी है, तो सारी बहस इसी के अंदर आ जाएगी. So let's start. Number one is we have to discuss that conditions relating to subject matter, because this today topic is regarding only one element and that is subject matter. So Islamic law has laid down the following conditions for the subject matter. Number one is, as you see, that there is legality of subject matter. That subject matter must be legal, not be prohibited. When we say in legality, in Islamic law terms mean permission, permissibility by Sharia. यानी जैसे इस्लाम ने हराम करार न दिया हो बल्कि उसे जायज करार दिया हो. एक है कि हमारा कंट्री लॉ क्या कहता है और एक है कि शरिया क्या कहती है. बिकॉज हमारा जो लॉ है वो सारा का सारा शरिया लॉ नहीं है बल्कि हमारे यहाँ ब्रिटिश लॉ भी है. तो इसलिए लीगल का मतलब नॉर्मली ये लिया जाता है कि जो हमारा पाकिस्तान का लॉ कहता है. इस वजह से यहाँ पर ये क्लियरेंस मैं आपको करता चलूं कि यहाँ जो लीगैलिटी से मुराद है वो ये है कि बाय शरिया लॉ, so which is known an other term that is permissible, halal. So the commodity or the service or performance must not include things prohibited by the Sharia like wine, pork, intoxication and the prostitutions etc. So ये चीजें जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और ये वो चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भी ये माकूद अलैह नहीं बन सकती, इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. It is forbidden. Why? Because it is forbidden for a Muslim to acquire or transfer through contract anything that Sharia has declared haram. यानी जिस चीज को शरिया ने हराम डिक्लेयर कर दिया है तो उसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अच्छा, sins, adultery, obscenity and immorality are prohibited by the Sharia, and any contract or transaction that entails these evils or promotes them in any way is also forbidden. यानी ये एक्शन बजाते खुद या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिनके अंदर ये एक्शंस इन्वॉल्व हों उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. Why? Because it is prohibited by Sharia. So from this it is established that subject matter of a contract must be such in which transaction are legally permissible. तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर शरिया ने ऑब्जेक्शन न किया हो, जिसको शरिया ने हलाल कर दिया हो. So actually what the Quran Majid provides you, that is not a list of halal. That is not list of halal. The main things which are prohibited, the list of those prohibited items have been provided by Quran and Sunnah. So like the list of things prohibited by Sharia has been affirmed by the Quran and Sunnah. And this list includes wine, flesh of swine, suwar ka gosht, blood of any blood, or animals,
जानवर, कौन से एनिमल्स which have died naturally or have not been slaughtered according to the Islamic teachings. जानवरों के बारे में इस्लाम ने दो उसूल दिए हैं। एक उसूल ये दिया है कि वो जानवर जिनके दांत जो है वो बिल्ली की तरह होते हैं, जो कैट फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जिनके दो दांत बड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है ज़ीनाब। तो वो दांत जिनके दो नोकीले, जिस तरह बिल्ली के, शेर के, कुत्ते के, ये दो दांत जिनके ये दो नोकीले दांत होते हैं, तो उन जानवरों को इस्लाम ने हराम करार दिया है। और परिंदों के अंदर हलाल और हराम का उसूल ये है कि वो परिंदे जो पंजों में फंसा के कोई चीज फिर खाते हैं, इस्लाम ने उनको हराम करार दिया है। तो इस्लाम ने उन्हें प्रोहिबिटेड करार दिया है। तो और वो जानवर जो सिर्फ चोंच से, जमीन से डायरेक्ट अपनी चोंच से खाते हैं, वो परिंदे जायज हैं, हलाल हैं। तो बहरहाल इस्लाम ने ये लिस्ट बकायदा दे दी है और उसूल दे दिए हैं परमिशन और प्रोहिबिशन के, कि जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और जिन चीजों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सकता है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग सच थिंग्स आर नॉट परमिसिबल, स्पेशली व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर मुस्लिम्स। तो ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट मुसलमानों के दरमियान हो रहा है, या कोई एक फरीक मुसलमान हो, तो मुसलमानों को इजाजत नहीं है कि वो हराम चीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करें। वाई मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू एक्ट इन प्रोहिबिटेड आइटम्स, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग के प्रोहिबिटेड आइटम्स आर नॉट एसेट और प्रॉपर्टी फॉर ए मुस्लिम। तो ये भी एक उसूल है कि जो चीज इस्लाम ने हराम कर दी है वो मुसलमान के लिए सिरे से वो सब्जेक्ट में वो माल ही नहीं है, तो इस वजह से वो सेल नहीं कर सकता। सेम एज मुस्लिम jurists are divided on the sale of milk of a woman and the hair of a human beings। तो इसके ऊपर jurist का इख्तलाफ है कि भाई क्या आया इनकी सेल जायज है कि नहीं जायज। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ पार्टीज कहती हैं, कुछ jurist ने कहा कि जायज है और कुछ ने कहा कि नाजायज है, but majority of the jurists says that it should be impermissible. Some jurists allow it because according to them milk and hair are pure and beneficial. So वो कहते हैं कि ये माल बन सकता है क्योंकि ये बेनिफिट है, एक इंसान का दूसरे इंसान के इसके अंदर फायदा है, तो इस वजह से ये एसेट बनता है, तो एसेट बनता है तो इसको सेल भी किया जा सकता है। Other jurists disallow this sale on the basis that these are part of men. So इस वजह से वो कहते हैं कि जो चीज इंसान का हिस्सा है, इंसान का जुज्व है, और इंसान का उज्व या जुज्व जो है उसको सेल नहीं किया जा सकता और ये प्रोहिबिटेड है, तो इस वजह से वो इसको नाजायज कहते हैं। Musical instruments are also included in things prescribed by Islamic law provided the contracting parties are Muslims. So same as musical instruments, कुछ instruments तो वो है डायरेक्ट जो जिसको इस्लाम ने प्रोहिबिट किया है, जो अहादीस के अंदर मौजूद हैं, उनकी एक अलग तफसील है। तो बहरहाल उसके बारे में जूरिस्ट ने कहा है कि इनको भी सेल करना जायज नहीं, खास तौर पर उन पार्टीज के लिए कि जो आपस में कर रहे हों और वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मुस्लिम्स हों। Similarly, contracts for wine, swine, and musical instruments are, however, allowed for non-Muslim citizens of an Islamic state। अगर किसी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई गैर मुस्लिम रहते हैं, और गैर मुस्लिम जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर चाइनीज हैं और गैर मुस्लिम्स हैं, चाइनीज गैर मुस्लिम्स हैं, अमेरिकन हैं, या कोई भी और आ जाते हैं हमारे पास गैर मुस्लिम, और वो यहाँ पर सूअर का गोश्त, शराब वगैरह अगर वो करते हैं तो उनका ये चीज करना जायज है, लेकिन कोई भी मुसलमान उनके साथ ये चीज, मुसलमान उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना उनको बेच सकता है। So sale of human blood today for the purpose of transfusion and donation and the sale of human eyes can be covered by the principle of necessity। Otherwise अब ये भी खून जो है किसी को देना, ब्लड देना और उसके पैसे चार्ज करना, या आंखें देना और उसके बाद या गुर्दा जो है वो किडनी सेल करना, गुर्दा जिसे लोग बेचते हैं, तो कहते हैं कि वो नेसेसिटी के उसूल के तहत जायज है कि एक इंसान को आंखें मिल रही हैं और उसकी वो जरूरत है, तो जरूरत के कायदे के तहत इस्लाम जो कहता है वो इसकी इजाजत दी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये जरूरत के कायदे के तहत है कि इसको नॉर्मल रूटीन या इसको बिजनेस ना बना दिया जाए। सो सिंपल आर्टिकल्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मीन वो चीजें जो किसी भी मुल्क की
रियासत की जो हुकूमत होती है, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं फैसल मस्जिद, हम कह सकते हैं ये जो साथ ही में मार्गला हिल्स हैं, कोई भी इनको नहीं सेल कर सकता। क्यों नहीं सेल कर सकता? क्योंकि ये प्राइवेट एंटिटी नहीं है, इसके ऊपर पूरी रियासत और रियासत के अफराद का हक होता है, तो इस वजह से इसको आप सेल नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकती। सो दीज थिंग्स कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर. So the legality of subject matter further requires that commodity should be owned by someone. लीगैलिटी क्या है कि ये मतलब भी है कि मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी चीज सेल नहीं कर सकते जो आपकी ओनरशिप में नहीं है। आप मिसाल के तौर पर चोर ने कोई चीज चोरी की और बाद में वो चीज भी हलाल है, मछली है, कुछ भी है, बकरी है, कुछ भी हलाल चीज है, लेकिन चोरी की हुई है, तो उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है। अगरचे वो चीज बजाते खुद जायज है, लीगल है, लेकिन अब वो चूंकि उसने चोरी की है, उसकी ओनरशिप में नहीं है, तो जो चीज किसी शख्स की ओनरशिप में ना हो तो वो उसको सेल भी नहीं कर सकता। सो दिस इज द केस दैट द पर्सन कैन नॉट सेल एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन हिज ओनरशिप. So legality of subject matter also requires that there should be no encumbrance or right attached to it. For the example, in this regard is sale of mortgage property to which the rights of the creditor or mortgagee are linked. मिसाल के तौर पर आपने किसी से कर्जा लिया और आपने कर्जे के अंदर अपना घर गिरवी रखवाया, मोर्टगेज करवाया, और आपने कहा कि मैं अब अभी तक आपने कर्जा अदायगी नहीं की और आपका एसेट आपके क्रेडिटर के पास गिरवी रखा हुआ है, तो अब आप उस घर को सेल करना चाहते हो, तो कहते हैं यू आर नॉट अलाउड टू सेल दैट होम विदाउट द परमिशन ऑफ दैट मोर्टगेजी, दैट क्रेडिटर हु हैज योर हाउस एज ए मोर्टगेज, जिसके पास आपने गिरवी रखवाया हुआ है. व्हाई? बिकॉज विद योर हाउस नाउ द राइट ऑफ दैट क्रेडिटर इज अटैच्ड. उस आदमी का हक वाबस्ता है कि अगर आप कर्ज वापस नहीं करेंगे तो वो आदमी आपका घर बेचकर अपना कर्ज पूरा करेगा. तो इस वजह से शरीयत इजाजत नहीं देती कि अब आप उसकी इजाजत के बगैर उसका घर जो अपना घर जो है उसको सेल आउट करें, तो ये आपको इजाजत नहीं है इस बात की.